Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics O levels. In this class, we will continue with the chapter of electricity, which is very important chapter, and we will discuss electromotive force and potential difference. अच्छा बच्चों, देखने में these terms sound very horrible, electromotive force and potential difference, but they are not that difficult. ये चीजें आसान हैं. Electromotive force and potential difference क्या होता है? बच्चों, somehow they are both voltages, right? Now what is voltage? मैं आपको simple example से बताता हूँ. Let's suppose you have a battery of UPS, उसके ऊपर लिखा होता है 12V, 12 volts. Now that battery has voltage of 12 volts. या अगर आप let's suppose किसी remote control के अंदर cell insert करते हैं, cell plug in करते हैं, उस cell के ऊपर लिखा होता है 1.5 once again volts, right? So it means we have to understand what is voltage. EMF or potential difference are somehow the voltages. Acha, voltage is certain type of energy being carried by one coulomb charge, right? अच्छा, what type of energy? आप खुद बताएं कि एक सर्किट में एनर्जी कौन सी फॉर्म में होगी. Specifically that energy is electrical energy. So voltage is energy that is being carried out by unit charge. ये चीजें समझने में शायद अभी आपको थोड़ा सा ट्रिक कर रही होंगी, थोड़ा सा अभी आप इसको ग्रास्प नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट को. यस, बिकॉज देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में वी स्टडीड मैकेनिक्स, वेव्स, वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेबल है. इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू, ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी से इंट्रोडक्शन करवाना, इलेक्ट्रिसिटी से फ्रेंडशिप करवाना इज माय जॉब, ताकि आपको चीजें समझ आए. और वंस यू अंडरस्टैंड थिंग्स देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए वी हैव टू मूव ऑन टू द सर्किट्स. वी हैव टू मूव ऑन अ सर्किट. नाउ व्हाट इज सर्किट? सर्किट एक ऐसी क्लोज पाथ होती है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है. व्हाट इज द मोस्ट बेसिक सर्किट? Let's suppose you have a battery and you simply take two wires and connect that battery with a bulb. So that makes a circuit. That's a complete path for the current to flow. Current will flow from one terminal of battery from one wire. It will flow through the bulb and then it will end to the negative terminal of the battery. That is the complete path. ठीक है? हम previous video में discuss कर चुके हैं कि conventional current flows from positive terminal to the negative terminal of battery, whereas electrons flow from the negative terminal where they are in access towards the positive terminal of battery, right? So मैं आपको straight away resistors और voltages और currents पर नहीं लेके जाऊंगा. I'll give you a simple example, ठीक है. उसके बाद मैं आपको एक circuit explain करूंगा and then we will compare. हम दोनों की analogies form करेंगे और हम दोनों को relate करेंगे, ठीक है. So example is very weird, yet an easy example. I am giving you an example of a coffee shop. ठीक है, this thing will make your life easy. ठीक है, अब how we can understand circuit with the help of coffee shop? Let's see that. Let's suppose you have this kitchen in a coffee shop जहां से आपके पास सारी की सारी सप्लाईज आ रही हैं. ठीक है, कॉफी कहाँ पर प्रिपेयर होती है? किचन में प्रिपेयर होती है. ठीक है, किचन में सारा कुछ स्टोर्ड होता है. यू कैन से कि आप एक किचन है या पैंट्री है, वहां पर फूड स्टोर्ड है, वहां पर फूड जो है वो प्रिपेयर होता है. एंड देन इन दिस पर्टिकुलर कॉफी शॉप देयर आर 3 tables. It's a small coffee shop. It has 3 tables, right? Table 1, table 2 and table 3. Now there are certain number of persons sitting on each table. Let's suppose first table के ऊपर there are 3 persons sitting. ठीक है, second table पे there is only 1 person, और third table पे there are 2 persons who are waiting for their coffees. ठीक है, अब कॉफी शॉप से, किचन से वेटर आएगा. He will come to table 1 and he will take an order, and he will take order of how many cups of coffee? 3 cups of coffee. Next table पे जाएगा, table number 2 पे, a person sitting there will order 1 cup of coffee.
और लास्ट टेबल पे 2 persons are sitting, they will order definitely 2 cups of coffee, right? So what is the path which is opted by this waiter? देखिए वेटर किचन से आया, ठीक है, उसके बाद उसने टेबल्स विजिट की, इसका मतलब है सबसे पहले ही रीच्ड, ही अप्रोच टेबल 1, then he came to table 2, and then table 3, and back to kitchen. So this is a particular path opted by that waiter, ठीक है. अच्छा, now a chef prepares, definitely chef कॉफी नहीं प्रिपेयर करता, barista कॉफी प्रिपेयर करता है. Once he passed those coffees to that waiter, once waiter comes out from the kitchen, how much cups of coffee he will be holding in his tray? जी बताइए. He will be holding 6 cups of coffee, ठीक है. So 1 2 3 4 5 6 cups of coffee, right? So इस टेबल तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद पास स्टिल कितने कप्स ऑफ कॉफी प्रेजेंट हैं? 6 cups of coffee. वाई? बिकॉज अभी उसने किसी टेबल पे कॉफी ड्रॉप नहीं की. सो ही रीचेस फर्स्ट टेबल और उनका ऑर्डर कितना था? 3 persons का ऑर्डर था, 3 cups ऑफ कॉफी. तो फर्स्ट टेबल पे कितने कप्स ऑफ कॉफी ड्रॉप हो जाएंगे? 3 cups ऑफ कॉफी यहां पर ड्रॉप हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है. सो जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, ही विल बी लेफ्ट विद, आउट ऑफ 6 ही विल बी लेफ्ट विद 3 cups of coffee, 1 2 3, right? So on the next table, on this table 2, he will drop 2 more cups of coffee, 1 2, sorry, one person that he will drop 1 cup of coffee, so he is left with 2 cups of coffee. तो जब वो next point पर पहुंचेगा, he has 2 cups of coffee. इसका मतलब है potentially he can provide 2 more cups of coffee, right? Moving on table number 3 he is going to drop those 2 cups of coffee, ठीक है. So he is left with nothing. तो इसका मतलब है before going back to kitchen he has no cup of coffee, ठीक है. अब इसको हमने एनोलॉजी को रिलेट करना है विद द सर्किट. अब थोड़ा सा इस पे गौर करें कि हु इज द कैरियर इन दिस केस? वेटर इज द कैरियर एंड ही इज कैरिंग कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है. एंड पोटेंशियली ही कैन प्रोवाइड कप्स ऑफ कॉफी. He was carrying 6 cups of coffee. Once he was out from the kitchen and he has dropped 6 cups of coffee on the tables respectively. ठीक है. अच्छा, सारी की सारी सप्लाईज कहां से आ रही हैं? सारी की सारी सप्लाईज आर कमिंग फ्रॉम द किचन. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्किट, और हमने उस सर्किट को इस कॉफी शॉप वाली एग्जांपल से रिलेट करना है. नाउ वी हैव अ सर्किट, वी हैव इन फैक्ट अ सीरीज सर्किट. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप सर्किट्स के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान है. देखिए, इन दिस circuit there is a chain of resistors. In fact there are 3 resistors. Now what is resistor? Resistor is an electrical component that converts electrical energy into heat energy, ठीक है. Resistance is measured in ohms. This first resistor has resistance of 3 ohms, the next one has resistance of 1 ohm, and the last one has resistance of 2 ohms. देखिए, अब इनको एनर्जी सप्लाई करने के लिए वी नीड अ बैटरी, और मैं यहां पर बैटरी ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज अ बैटरी, ठीक है. याद रखना बच्चों, दिस लार्जर टर्मिनल इज ऑलवेज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अब मुझे वायर लेनी है और इस सर्किट को कंप्लीट करना है, इस सर्किट की पाथ को कंप्लीट करना है, सो दैट करंट कैन फ्लो थ्रू दिस सर्किट. Right? So this is how we complete a circuit.
सो मैं रेड कलर से वायर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सर्किट कंप्लीट होने के लिए ये वायर थ्रू आउट कनेक्टेड होनी चाहिए, कहीं से आपका जो लूप है वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। सो हियर वी हैव अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो, ठीक है। ओके, लेट्स अज्यूम दैट दिस बैटरी हैज वोल्टेज, अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, इट इज ईएमएफ, आई एम जस्ट सेइंग it has a voltage of 6 volts. Let's assume that this battery has voltage of 6 volts. Acha, we know that electron moves from negative terminal of battery to the positive terminal, but here we will talk about the conventional current which flows from the positive terminal of the battery towards the negative terminal of battery. इसका मतलब है this is the right direction of conventional current. Current is represented by symbol I. ठीक है। Now what is voltage? बच्चों ये सारा कुछ हम वोल्टेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ही तो कर रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है कि सर्किट में क्या चीज फ्लो कर रही है, क्या एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या एनर्जी फ्लो करती है, करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दैट फिजिकल एंटिटी विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्या चीज फ्लो कर रही है? मैंने आपको बताया था कि मेटल के अंदर फ्री electrons होते हैं, so electrons are flowing from the negative terminal towards the positive terminal of the battery. So there is flow of electrons, or we call it flow of charge. I told you in the previous class that a lot of electrons, in fact 6.25 into 10 raised to power 18 electrons collectively make a charge of 1 coulomb. आप इस 1 coulomb charge को unit charge भी कहते हैं। So let's take this unit charge as a reference charge. So basically 6.25 into 10 raised power 18 electrons flow करेंगे. There will be collective charge of 1 coulomb and we call that a unit charge. इसका मतलब ये है कि जब यूनिट चार्ज या चार्ज फ्लो करेगा थ्रू सर्किट, इट विल कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कहां पर होगी? क्या इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी पॉकेट्स हैं जहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है? नो, इलेक्ट्रॉन कैरी देयर एनर्जी, बहुत ध्यान से बात सुनने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी देयर एनर्जी इन देयर ड्रिफ्ट, इन देयर वेलोसिटी। टर्बाइंस कैसे रन होती हैं? वाटर के फ्लो से। तो वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हियर द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी, इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो हु इज द कैरियर? 1 coulomb of charge is carrier of what? Of electrical energy. And who is the supplier of energy here? Battery is a supplier of energy. And who is consuming energy? Resistors are consuming energy. अच्छा, अब इस बात को जरा सोचे कि कन्वेंशनली जब कोई चीज कैरी करनी होती है, फॉर एग्जांपल लगेज कैरी करना होता है, या लेट सपोज आपने देखा होगा कि पुराने विलेजेस वाले पिक्चर्स में, और ऐसा अभी रियलिटी में होता है, ठीक है, वुमेन ट्रैवल टू द पॉन्ड्स एंड दे कैरी पॉट्स full with water on their heads like this, ठीक है। so carrier is at the bottom, इस चीज को मैं आगे रिलेट करूंगा, me or a person who is carrying luggage is at the bottom and the luggage is on the top. Here who is the carrier? I just told you unit charge is a carrier, तो मैं carrier को नीचे लिखूंगा, in fact denominator में लिखूंगा 1 coulomb charge। और 1 coulomb charge क्या कैरी कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि उसके ड्रिफ्ट में क्या चीज है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एंड इट इज कैरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ न्यूमिनेटर, राइट। इसका मतलब ये है 1 coulomb ऑफ चार्ज और यूनिट चार्ज इज कैरिंग एनर्जी ऑफ 6 joules and this energy is present to is given to that charge by the battery. अब मुझे कैसे पता चला कि दिस पर्टिकुलर चार्ज हैज एनर्जी ऑफ 6 जूल्स? बच्चों अब यहां पर इस बात को रिलेट करें कि जितने वोल्ट्स की बैटरी होगी वो बैटरी उतने जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी 1 coulomb चार्ज को टू मूव अराउंड द सर्किट। इसका मतलब ये है कि अगर 6 वोल्ट्स की बैटरी है तो एवरी coulomb ऑफ चार्ज, एवरी यूनिट चार्ज विल गेट 6 joules of energy to move once around a circuit.
अगर 12 वोल्ट्स की बैटरी है तो वो यूनिट चार्ज को कितनी एनर्जी देगी? नाउ यू कैन इजीली टेल दैट इट विल कैरी 12 joules of energy, and let's suppose 220 volts की बैटरी है, so it will give 220 joules of energy to every coulomb of charge to move once around a circuit. So now you know that this charge is carrying energy, so this particular energy that is given to unit charge to move once around a complete circuit is called EMF of the cell. So what is voltage? Voltage is energy that is being carried per unit charge. तो मैं यहां पर कह सकता हूं 6 volts is equal to 6 joules divided by unit charge या 1 coulomb charge, right? So this is how you find out the value of energy that is being carried out by the charge, and this particular energy is called EMF. ठीक है, अब नाम पे जरा गौर करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितना बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा, देखिए अब इसको अंडरस्टैंड करें, पॉजिटिव और नेगेटिव में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स नेगेटिव चार्ज से अवे लगेगी इलेक्ट्रॉन पर और स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे, उतनी ज्यादा स्पीड से चार्ज रश करके आएगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? सो this is how it goes. EMF of 6 volt means this battery is giving 6 joules of which energy? Electrical energy to unit charge to move once around a circuit. इसका मतलब ये है, now इस पॉइंट तक कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई, this is still carrying 6 joules per coulomb. इसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल है 6 volts. अब आप मुझे बताइए कि इन रेशोज के हिसाब से 3 ohms, 1 ohms और 2 ohms के रिस्पेक्ट से, रेशो के रिस्पेक्ट से इसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो इसने 3 joules फर्स्ट रेजिस्टर पे ड्रॉप कर दिए एंड इट इज लेफ्ट विथ ओनली 3 joules ऑफ एनर्जी। तो जब 3 joules पर कोलम यहां पर ड्रॉप होंगे तो इस फर्स्ट रेजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज होगी 3 volts और नेक्स्ट पॉइंट पर वोल्टेज पहुंचेगी 3 volts. 6 minus 3 is 3. ओके, नेक्स्ट रेजिस्टर पर कितने जूल्स ड्रॉप होंगे? 1 जूल ड्रॉप हो गया, सो यूनिट चार्ज विल बी लेफ्ट विद हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी? जस्ट 2 जूल्स ऑफ एनर्जी. सो इसके क्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ एंड यूनिट चार्ज इज लेफ्ट विद 2 जूल्स ऑफ एनर्जी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 volts. अब ये जो 2 जूल्स कैरी कर रहे हैं वो नेक्स्ट रेजिस्टर पर ड्रॉप हो जाएंगे, इसका मतलब है नेक्स्ट रेजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज होगी दैट विल बी 2 volts एंड द रिमेनिंग वोल्टेज इज 0 volts. याद रखना, जब भी करंट टर्मिनेट होता है तो उसकी वोल्टेज रिड्यूस होकर हमेशा हमेशा 0 हो जाती है. नाउ what has happened across this first resistor? Let's call it resistor R1 which has resistance of 3 ohms. क्या हुआ बच्चों? यहां पर 6 जूल्स में से 3 जूल्स ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर रेजिस्टर को मिल गई और उसने इस एनर्जी का क्या किया? दिस रेजिस्टर हैज कन्वर्टेड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन दिस पर्टिकुलर केस इट हैज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, बल्ब के केस में क्या होना था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. फैन के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में. सिमिलरली जो चीज कॉमन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए? Potential of point A is 6 volts. What is potential of point B? Point B has potential of 3 volts. Now, what is the potential difference between point A and point B? Potential difference is simply 6 minus 3, which is 3 volts, जो यहां पर already mentioned है. Now you know what is potential difference? It is the amount of energy that has been converted from electrical to other forms once unit charge या once 1 coulomb charge flows from one point to another. अब इस सारी दोनों डायग्राम्स की एनालॉजी बनाएं. ठीक है, क्या करना है आपने? कॉफी शॉप को आपने रिलेट करना है सीरीज सर्किट में. तो कॉफी शॉप वाली
डायग्राम में कॉफी शॉप वाला सर्किट नहीं है, सर्किट इज अ टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कॉफी शॉप वाली डायग्राम में हु इज द सप्लायर, हु इज द सोर्स, किचन इज द सोर्स। सिमिलरली रिलेट करे शाबाश, इस वाले केस में बैटरी इज अ सोर्स। ओके, कॉफी शॉप में जो किचन है वो क्या सप्लाई कर रहा है, दैट इज सप्लाइंग कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है। वेयर एज अगर हम इसको रिलेट करें इस बैटरी से, बैटरी इज प्रोवाइडिंग व्हाट, इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, डेफिनेटली पर यूनिट चार्ज, सो दैट इज वोल्टेज। ओके, हु इज द कैरियर इन दिस एग्जांपल ऑफ कॉफी शॉप, दिस वेटर इज द कैरियर, ठीक है। और यहां पर कौन कैरियर है, यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज इज अ कैरियर। व्हाट थिंग इज बीइंग कैरिड बाय द कैरियर इन कॉफी शॉप, कप्स ऑफ कॉफी, ठीक है। और सीरीज सर्किट में यूनिट चार्ज कैरियर क्या कैरी कर रहा है, जूल्स, इनफैक्ट 6 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हु आर द कंज्यूमर्स, persons are the consumers in coffee shop, and who is the consumer here, resistors are the consumers, ठीक है। what is being consumed by the person sitting on the coffee tables, definitely cups of coffee या simply coffee को consume कर रहे हैं। और सर्किट में रेजिस्टर्स जो है वो एनर्जी, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो यूज अप कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी मच रिलेटेबल, ठीक है। मैंने आपको एक चीज स्टार्ट में बताई थी कि कैरियर इज इन डिनोमिनेटर एंड द थिंग दैट इज बीइंग कैरिड इज इन न्यूमिनेटर, ठीक है। जो कैरियर है वो नीचे है एंड द थिंग दैट इज बीइंग कैरिड इज ऑन द टॉप। ये देखिए सामान उठाया हुआ है सर पे, ठीक है, कैरियर नीचे। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है ये फ्रैक्शन की लाइन है, नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर। जो चीज ने चीज कैरी की हुई है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो चीज कैरी की हुई है मैंने ऊपर पेन प्लेस कर दिया है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। कैरियर कौन है, यूनिट चार्ज इज कैरियर, कैरियर ऑफ व्हाट, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, नाउ somehow we know what is EMF. EMF is a term related to battery, याद रखना, जहां से एनर्जी सप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सप्लाई विच इज बैटरी इन दिस केस। सो व्हाट इज EMF? EMF बैटरी की या सेल की होगी, ठीक है, या एनर्जी सोर्स की होगी, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की होगी। तो आप लिखेंगे EMF of a battery is the energy, EMF of the battery is the energy given to the unit charge by the battery to move once around a complete circuit. ठीक है, अब बैटरी ने एनर्जी दे दी है, किसको दे दी है, यूनिट चार्ज को, और उसने कहा है कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग द रेजिस्टर्स या अमंग द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो उसने सारी की सारी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिटर्न बैक करना है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी बैटरी से गेन होगी उतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी ओवर द सर्किट। सो व्हाट इज EMF? EMF किस चीज की होती है, दोबारा बता रहा हूं, EMF बैटरी की होती है। सो EMF ऑफ द बैटरी इज द एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज by the, who is the supplier of energy, by the battery to move once around a complete circuit। एक राउंड ट्रिप करने के लिए जो चार्ज को मिली। तो आप कहेंगे यहाँ तो चार्ज सारा कंज्यूम हो जाएगा। जी बच्चों, चार्ज सारा कंज्यूम हो जाएगा। इन दैट केस यू विल हैव टू चार्ज योर बैटरी या रिप्लेस योर बैटरी। अगर चार्जेबल है तो चार्ज हो जाएगी, अगर चार्जेबल नहीं है यू विल हैव टू रिप्लेस योर बैटरी, ठीक है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एब्रिविएशन है स्मॉल p डॉट स्मॉल d डॉट, ठीक है। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 4 का क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे किस नंबर के साथ? मैं कहूंगा 4 का क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे कि आई एम कंफ्यूज्ड, आपकी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। मैं कहूंगा 4 का 1 के साथ क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे 4 minus 1 is 3। सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 4 1, डिफरेंस ऑफ 4 and 1 is 3। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखें अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है उसमें पॉइंट A का जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट्स, और पॉइंट B की जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सिंपली 6 minus 3।
ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। तो इस डेफिनेशन को स्टार्ट ही ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बड़ा जरूरी है इस तरह से लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द एनर्जी कन्वर्टेड बैटरी से आने वाली एनर्जी किस फॉर्म में है, बैटरी से आने वाली एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। सो इट इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स। ठीक है, अदर फॉर्म्स कौन सी हो सकती हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टर या हीटर के केस में हीट एनर्जी, बल्ब के केस में लाइट एनर्जी, एलईडी के केस में लाइट एनर्जी, फैन के केस में विंड एनर्जी, और यू कैन कॉल इट काइनेटिक एनर्जी। सो जनरली वी विल राइट अदर फॉर्म्स व्हेन unit charge flows between these 2 points, right? So what is EMF? EMF of the battery is the energy given by the battery to unit charge to move once around a complete circuit. And what is potential difference? Potential difference 2 points का होता है, याद रखना। Potential difference between 2 points in the circuit is the energy converted from electrical to other forms of energy once unit charge or 1 coulomb charge flows between the points. So let's generalize this whole story. तो generally both are voltages और उनका unit भी volt है। We will define voltage as energy per unit charge। ठीक है, एक और डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी which is work done by unit charge। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज? आप लिखेंगे बच्चों वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन बोथ केसेस इट इज वोल्टेज, आइदर इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज और इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में से हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ voltage and charge. Very important formula for O levels as well as for A levels. A levels में formula बहुत बारी आएगा, right? So what is the SI unit of voltage? SI unit of voltage is volts, once again represented by symbol V. अब voltage एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल भी कैपिटल V है, वोल्टेज का, और इसका यूनिट भी कैपिटल V है, सेम। ठीक है, मैथ्स के लिए डिफरेंट है, सिंबल स्मॉल m है और यूनिट kg है। हियर द यूनिट इज वोल्ट्स एंड द सिंबल इज आल्सो कैपिटल V, राइट? सो इन द नेक्स्ट क्लास हम वोल्टेज के ऊपर और कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, ओम्स लॉ को देखेंगे, रेजिस्टर्स को देखेंगे। सो यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स बच्चों। अगर आपको ये समझ आएगा तो आगे वाली बातें समझ आएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।